Good morning, all of you. Today we are going to do. Okay, thank you, Sardul. I got your hand, but you were suddenly went out of the meeting. So today we are going to do linear combination of vectors. Another important one. इस पे डायरेक्टली बोल के कभी क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन इसका एप्लीकेशन बहुत जगह है. Linear combination of vectors. Very important topic. Very applicative in case of collinearity, coplanarity, linearly independent, linearly dependent. बहुत कुछ है पढ़ने को. So now see. सबसे पहले हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब समझ लें, जो ऑलरेडी तुम समझ रहे हो. लेट a1 वेक्टर a2 वेक्टर. ध्यान से समझना, एक बार समझ गए तो बहुत जगह यूज कर लोगे और बहुत इजी है. ऐसे करके an वेक्टर तक bn वेक्टर्स, bn वेक्टर सिस्टम या बी ए सिस्टम ऑफ n वेक्टर्स. देन द वेक्टर x1 times a1 vector plus x2 times a2 vector plus x3 times a3 vector plus डॉट 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 इस तरह से xn times an वेक्टर, वेयर ये जो x1 x2 x3 ये सब है ना स्केलर्स है, मतलब नंबर है. x1 x2 x3 और यू कैन से सम वेरिएबल है. xn are all scalars, is called a linear combination of, is called a linear combination of a1 vector, a2 vector, a3 vector dot 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 an vector. दिस इज ऑल अबाउट लीनियर कॉम्बिनेशन. का मतलब क्या होता है? मतलब हर वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करके एंड या सब्ट्रैक्ट करके लिखते जाना. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज linearly dependent and independent vectors. Linearly dependent vectors. Again we will go by the definition. The vectors, ध्यान से समझेंगे, a1 a2 dot 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 an are called linearly dependent, if scalars x1 x2 dot 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 xn not all zero simultaneously. सारे जीरो नहीं होने चाहिए. not all zero simultaneously can be found such that इनका लीनियर कॉम्बिनेशन एक नल वेक्टर हो जाए. such that x1 times a1 vector plus x2 times a2 vector plus dot 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 xn times an vector जो है वो एक नल वेक्टर हो जाए. The vectors a1 a2 a3 a4 dot 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 an are called linearly dependent vectors if you can find n scalars, not all zero simultaneously, such that कि वो स्केलर और ये सारे वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन एक नल वेक्टर हो जाए. That's it. अब सारे स्केलर जीरो हो जाएंगे तो ऑब्वियस बात है कि लीनियर कॉम्बिनेशन भी जीरो वेक्टर हो ही जाएगा. तो वो कहलाता है लीनियरली इंडिपेंडेंट. मतलब हर वेक्टर एक दूसरे से लीनियरली इंडिपेंडेंट है. सब स्केलर ही जीरो हो गया, बस वही एकमात्र रास्ता अगर बचता है तो फिर ऑल द वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. लेकिन अगर वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हैं तो कम से कम एक सेट स्केलर का जरूर मिलेगा जिसमें सारे स्केलर्स जीरो नहीं होंगे, फिर भी लीनियर कॉम्बिनेशन सारे वेक्टर्स का एक नल वेक्टर हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स. We will use it in questions. Next is linearly independent vectors. पहले हम लोग मतलब समझेंगे. Linearly
इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। इसमें अगर लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो है मतलब सारे स्केलर्स ही जीरो होंगे, तभी लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो हो सकता है इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का। द वेक्टर्स a1 a2 a3 dot 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 an are called linearly independent vectors। देखो पहले थ्योरी क्लियर करेंगे उसके बाद क्वेश्चन पे जाएंगे। थ्योरी बहुत इजी है और जरूरी नहीं है कि क्लास 1.5 घंटा का हम लें। मेरा ये टॉपिक खत्म, क्लास विल बी क्लोज्ड। The vectors this are called linearly independent vectors if x1 times a vector plus x2 times a2 vector plus dot 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 इस तरह से xn times an vector अगर null vector है, this if implies x1 equal to x2 equal to x3 equal to सारे ही स्केलर्स जीरो ही हो जाएं, then these are called linearly independent vectors. If the definitions are clear, please raise hand. Now applications. पहला एप्लीकेशन वेरी सिंपल, two collinear vectors are always linearly dependent. Two collinear vectors are always linearly dependent. You can understand this very easily. The proof is very simple. You know one thing, what a vector and b vector are collinear if and only if a vector should be some scalar multiplication of b vector, which can be written as a vector plus minus m times some b vector is equal to null vector, where m is some scalar, that too non-zero. M is some scalar, not necessarily zero. तो तुम देख लो, ये वही डेफिनेशन है। This simplifies to x times a vector plus some y times b vector equal to none vector, where x and y are not all zero simultaneously. X and y are not all zero necessarily. इसका मतलब तुम समझ गए कि कोलिनियर वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं और नन कोलिनियर वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। हाउ? नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट। टू नन कोलिनियर वेक्टर्स are linearly independent. Okay, now see proof. Let us see proof. Let a vector and b vector be two non-collinear vectors. A vector and b vector be two non-collinear vectors and x and y be scalars. Such that x times a vector plus y times b vector is a null vector. और हम अगर प्रूफ कर दें कि x और y दोनों को जीरो ही होना पड़ेगा अगर a और b नन कोलिनियर वेक्टर्स है, तो हम कह सकते हैं कि a और b पक्का लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ये जो रिलेशन हम लिखे हैं x टाइम्स a वेक्टर
plus y times b vector, ये रिलेशन होल्ड करने के लिए if somehow you can prove that x and y both has to be 0, then you can clearly see that a and b are linearly independent vectors. तो हम मान लेते हैं कि x और y 0 नहीं है, मान लेते हैं. We will prove it by contradiction. If x not equal to 0, then what you can write? You can write a vector is equal to minus y by x times b vector. Please raise hand, try to understand. समझ रहे हो? अगर x 0 नहीं होगा तो तुम a वेक्टर को लिख सकते हो minus y by x times b vector. Now y scalar, x scalar, minus y by x scalar. So it's a form of collinear vectors. This is only possible if a and b are collinear. मतलब यहाँ contradiction आया है. Only possible if a and b are collinear, जबकि वो दोनों नॉन collinear है. Implies we are at contradiction. इसका मतलब है कि x नॉट इक्वल टू 0 लेना सही नहीं है. x इक्वल टू 0 होगा. उसी तरह तुम y इक्वल टू 0 भी प्रूव कर सकते हो. Similarly, y इक्वल टू 0 implies a and b are linearly independent. a and b are linearly independent. देखो बहुत प्यार से समझाएंगे तुमको, इसे बुक में नहीं मिलेगा, टॉपिक मिलेगा. The same kind of explanation you won't get. So please be patient and please learn very beautifully and with a lot of comfortness and patience. वो ज़्यादा जरूरी है. Now see, very important point. 3 coplanar vectors. 3 coplanar vectors are always linearly dependent. 3 coplanar vectors are always linearly dependent. I hope you can understand this. Very easy. How? Proof. Let a vector, b vector, c vector be 3 coplanar vectors. 3 coplanar vectors implies, you know one thing, we can write a vector as some linear combination of other 2 vectors because these are coplanar vectors. ये हम बताए थे. अगर कोई तीसरा वेक्टर बाकी दोनों के साथ कोप्लेनर है तो उसका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा. दिस कैन बी रिटन लाइक दिस: a वेक्टर प्लस माइनस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर प्लस माइनस म्यू टाइम्स c वेक्टर इज a लन वेक्टर. लन वेक्टर, it's a non vector. However, lambda mu should not be 0 simultaneously. कोई जरूरी नहीं है कि 0 होना ही चाहिए, क्योंकि a can be linear combination of b and c where lambda and mu are scalars, not necessarily 0. इसका मतलब है कि a vector, b vector, c vector are linearly dependent. तो ये एक काम का चीज है, ध्यान से. अगर कभी are linearly dependent vectors, तो note a vector, b vector, c vector are coplanar. A vector, b vector, c vector are linearly dependent. Are linearly dependent. ये दोनों में से कुछ भी कहता है तो दोनों सेम चीज ही है, और कंडीशन लगेगा STP ऑफ A, B, C equal to 0. And I know you know this can be written as A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. This determinant should be 0 if 3 vectors are linearly dependent or if 3 vectors are coplanar. Now next what we can prove, next point is
3 non-coplanar vectors. 3 non-coplanar vectors are linearly independent. Proof same. Proof same. A vector, B vector, C vector B, non-coplanar vectors. Non-coplanar vectors and x, y, z be scalars such that x times a vector plus y times b vector plus z times c vector is a null vector. अगर x नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो तुम लिख सकते हो a वेक्टर को, पता है क्या? तुम लिख सकते हो माइनस वाई बाई एक्स टाइम्स बी वेक्टर प्लस माइनस जेड बाई एक्स टाइम्स सी वेक्टर. आई होप यू कैन गेट दिस. और ये बी और सी का लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया है. इसका मतलब ये तो ए बी सी जब कोलिनियर होगा तब होगा, सॉरी कोप्लानर. पॉसिबल ओनली इफ ए बी सी आर कोप्लानर. इसका मतलब जो हमारा अजम्पशन था वो गलत है, वहां हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन पर आ गए. एक्स नॉट इक्वल टू 0 लेना सही नहीं है. सो एक्स इज इक्वल टू 0. सिमिलरली तुम y और z भी 0 प्रूव कर सकते हो. y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 का मतलब है कि अगर a b c तीनों नन कोप्लेनर है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है. आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. कभी कभी बोलेगा तुमको वैल्यू निकालने लैम्डा का ताकि ए बी सी आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो तुम समझ जाओ कि वो लीनियरली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, मतलब वो कोप्लानर नहीं होना चाहिए, मतलब कि एसटीपी 0 नहीं होना चाहिए. दिस इज ऑल अबाउट थ्योरी ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स. नाउ few important points which should be always kept in mind to solve problems. Few very common concepts. इस पे क्वेश्चन आने का चांस बहुत हैवी रहता है. फर्स्ट पॉइंट सब जानते हो तुम. पहला पॉइंट ए वेक्टर इक्वल टू a1 आई कैप, बस रिकैप है. b2 j कैप प्लस, गलत लिख दिए. ए में ए लिखने का मेरा आदत नहीं होता है जनरली, अच्छा नहीं लगता है हमको लिखना. a2 j कैप प्लस a3 k कैप एंड b वेक्टर इक्वल टू b1 आई कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप आर कोलिनियर. बस रिवीजन है. इफ एंड ओनली इफ a1 बाई b1 इक्वल टू a2 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, दैट इज a वेक्टर शुड बी सम स्केलर टाइम्स b वेक्टर. तो ये पॉइंट तुम जान रहे थे. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मान लो 3 पॉइंट्स दिया है, ये तो 2 वेक्टर हो गया आर कोलिनियर. ए वेक्टर इक्वल टू a1 आई कैप प्लस, दैट हाथ फिर चल जा रहा है आज, प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप. नेक्स्ट b वेक्टर इज इक्वल टू b1 आई कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप. c वेक्टर इक्वल टू c1 आई कैप प्लस c2 j कैप प्लस c3 k कैप. 3 पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स है. वो 2 वेक्टर था, पहला वाला में दोनों वेक्टर था और कोलिनियर वेक्टर्स था. आर 3 पॉइंट्स, then
they are collinear if and only if. You remember 3D, 3 पॉइंट्स कोलिनियर का बेस्ट तरीका है डायरेक्शन रेशियो शुड बी प्रोपोर्शनल। तो एक बेस बना लेते हैं ए वाले को, मतलब कि इफ एंड ओनली इफ तुम कह सकते हो कि बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर शुड बी सम स्केलर टाइम्स सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, क्योंकि तीनों पॉइंट अगर कोलिनियर है तो बी माइनस ए वेक्टर और सी माइनस ए वेक्टर भी कोलिनियर होना चाहिए। मतलब b1 माइनस a1 बाई c1 माइनस a1 इक्वल टू b2 माइनस a2 बाई c2 माइनस a2 इक्वल टू b3 माइनस a3 बाई c3 माइनस a3। रटने का जरूरत नहीं है, बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो ध्यान में रखना है। ये 3 पॉइंट कोलिनियर कराने के लिए हुआ। 2 वेक्टर कोलिनियर कराना सिखा दिए, 3 पॉइंट कोलिनियर कराना सिखा दिए। नाउ 3 वेक्टर्स, a वेक्टर इक्वल टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, कॉमा b वेक्टर इक्वल टू b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप एंड c वेक्टर इक्वल टू c1 i कैप प्लस c2 j कैप प्लस c3 k कैप। ये तीनों वेक्टर है। देखो वेक्टर और पोजीशन वेक्टर अलग चीज है। R3 को प्लेनर वेक्टर्स, R3 को प्लेनर वेक्टर्स, देन STP 0 हो जाएगा। को प्लेनर वेक्टर्स है तो फिर STP विल बी 0। मतलब A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, this determinant should be 0। नेक्स्ट पॉइंट, 4 पॉइंट कोप्लानर। अभी 3 वेक्टर कोप्लानर था, 4 पॉइंट्स कोप्लानर। ए वेक्टर इक्वल टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, कॉमा b वेक्टर इक्वल टू b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। बेसिकली ये भी तुमको सिखाए हुए हैं हम, इसमें भी डिटर्मिनेंट ही 0 कर देंगे हम एक पॉइंट को बेस लेके, क्योंकि जब चारों पॉइंट एक प्लेन पे है तो 3 वेक्टर एक प्लेन पे आएगा। और हम तुमको ये भी सिखा दिए थे कि प्लेन का इक्वेशन निकालना, कौन सा प्लेन में लाई कर रहा होगा चारों। याद है तो हैंड रेस करना बनता है। यहाँ पे कोई भी 3 पॉइंट से प्लेन का इक्वेशन निकाल के चौथा पॉइंट उसमें पुट भी कर सकते हो, तो भी तुम्हारा चारों को प्लेनर हो जाएगा। आर 4 co-planar points are 4 co-planar points if, सीधा सा बात है, ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर, ए डी वेक्टर सब कोप्लेनर होना चाहिए। मतलब b1 माइनस a1, b2 माइनस a2, b3 माइनस a3, फिर ए सी वेक्टर c1 माइनस a1, c2 माइनस a2, c3 माइनस a3, d1 माइनस a1, d2 माइनस a2, d3 माइनस a3 इज इक्वल टू 0। ये 0 हो जाना चाहिए, तब चारों पॉइंट कोप्लेनर हो जाएगा। इनफैक्ट आई हैव आल्सो टोल्ड यू हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द पॉइंट्स ए बी एंड सी। कोप्लेनर है तो चौथा ऑलरेडी उस पर आ ही जाएगा, तो बस 3 पॉइंट काफी होता है एक प्लेन का इक्वेशन लिखने के लिए। वेक्टर इक्वेशन भी दिए हुए हैं, डिटर्मिनेंट का फॉर्म में भी दिए हुए हैं तुमको, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1 और फिर x2 माइनस x1 और फिर नीचे x3 माइनस x1। x1 को बेस बनाए रहते हैं, बस वहां से हम लोग डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं तो आ जाता है। या वेक्टर इक्वेशन भी हम लोग किए थे, r वेक्टर माइनस a वेक्टर, ये वाला बताना, समझ रहे हो? r वेक्टर माइनस a वेक्टर इक्वल टू सम लेमडा टाइम्स b वेक्टर माइनस a वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स c वेक्टर माइनस a वेक्टर। दिस इज ऑल्सो वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच इज पासिंग थ्रू a b and c। कैसे?
R वेक्टर इज ए पोजिशन वेक्टर ऑफ जनरलाइज्ड पॉइंट ऑन द प्लेन, और ए बी सी तीनों प्लेन पर है, तो a माइनस b माइनस a, दिस इज ऑन प्लेन, this is on plane, this is on plane. So these and these are three coplanar vectors. So first vector can be written as linear combination of other two vectors. Hand raise, यहाँ पर hand raise जरूरी है. I hope you can. This is a vector equation of plane containing the points a, b and c. जितना ज्यादा तुम्हारा वेक्टर्स का कंसेप्ट क्लियर होगा, 3D पर पकड़ उतना अच्छा बनेगा. हालांकि 3D तुम लोग ऑलरेडी बहुत अच्छा सॉल्व कर चुके हो. और दो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स दिखाते हैं तुमको लीनियर कॉम्बिनेशन वाला फंडा यूज करके. ये देखो, ये जो चार वेक्टर को, चार पॉइंट्स को कोलिनियर करवाना है, अगर कोप्लेनर करवाना है, चार पॉइंट्स को कोप्लेनर, तो वहां पर एक अच्छा नोट दे रहे हैं, वो भी काम आता है. यू कैन यूज इट. ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर आर ऑल coplanar points if scalars x, y, z, w can be found, if scalars x, y, z, w can be found, not all zero simultaneously, such that x plus y plus z प्लस w ये जीरो हो जाए, एंड चारों वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो हो जाए. अगर तुम ऐसा चार वेक्टर, चार स्केलर ढूंढ के निकाल दिए जिसमें चारों का लीनियर कॉम्बिनेशन भी नल वेक्टर हो जाए और चारों स्केलर का सम भी जीरो हो, लेकिन सारे स्केलर्स जीरो ना हो, नॉट ऑल जीरो साइमल्टेनियसली, then you can say that the 4 points A, B, C, D are coplanar. How? We will see the proof. बिना प्रूफ कुछ नहीं करेंगे. प्रूफ सी. A, B, C are coplanar. ठीक है. And let the plane containing ABC, let the plane containing A vector, B vector, C vector be given by R vector minus A vector equal to some scalar times B vector minus A vector plus some scalar times C vector minus A vector. So it's a very easy point जो तुम समझ रहे हो. So इसको देखो, फर्दर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, implies R vector equal to A vector plus m times B vector minus A vector plus n times C vector minus A vector. ठीक है. R vector क्या है? R vector is the position vector of a general point lying on the plane containing A, B and C. Now since D vector also lies on the same plane, so we can put D vector in place of R. D vector in place of, क्योंकि D vector भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो D vector will satisfy A vector plus m times B minus A vector plus n times C minus A vector. Or you could have started directly by like this कि A, B, C, D are coplanar, चारों पॉइंट, तो तुम्हारा D माइनस ए प्लेन पे, B माइनस ए प्लेन पे, C माइनस ए प्लेन पे, तो D माइनस ए को लीनियर कॉम्बिनेशन लिख देंगे B माइनस ए और C माइनस ए का, तो D माइनस ए हो जाएगा m टाइम्स B माइनस ए प्लस n टाइम्स C माइनस ए, और A को भेज देंगे राइट साइड में, तो D वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा A प्लस m टाइम्स B माइनस ए प्लस n टाइम्स C माइनस ए, विच कैन फर्दर बी रिटन लाइक दिस. A वेक्टर के साथ कोफिशिएंट आ रहा है 1 माइनस m माइनस n टाइम्स A वेक्टर, B वेक्टर के साथ आ रहा है m टाइम्स B वेक्टर, प्लस C वेक्टर के साथ आ रहा है n टाइम्स C वेक्टर, एंड हेयर आई हैव प्लस माइनस ऑफ D वेक्टर.
प्लस माइनस ऑफ डी वेक्टर, राइट भेज देंगे, डी वेक्टर को राइट भेज देंगे तो तुम्हारा प्लस में आ जाएगा -1 टाइम्स डी वेक्टर। -1 अलग लिख रहे हैं हम, लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखवाना चाह रहे हैं। -1 टाइम्स डी वेक्टर शुड बी नल वेक्टर। नाउ सी दिस कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म। ये जो तुम्हारा 1 - m - n ये क्या है? x स्केलर क्या है? y स्केलर ये भी क्या है? z स्केलर ये क्या है? w स्केलर that is x times a vector plus y times b vector plus z times c vector plus w times d vector equal to null vector where, जोड़ के देख लो चारों स्केलर को, x plus y plus z plus w is equal to 0. So these are the two necessary and sufficient conditions for 4 points to be coplanar. अगर कोई पूछता है कि क्या x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 0 और x और a b c d का लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 कराने वाला 4 स्केलर अगर हम x y z w ढूंढ सकते हैं जिसका सम 0 होगा, क्या ये कंडीशन सफिशिएंट और नेसेसरी है? देन यस, इट्स वेरी मच सफिशिएंट एंड नेसेसरी कंडीशन फॉर 4 पॉइंट्स टू बी कोप्लानर। हम इसको यूज करके भी अभी क्वेश्चन बनाना सिखाएंगे तुमको कि कैसे ये 4 स्केलर वाला कंडीशन यूज करके भी हम लोग 4 पॉइंट्स को कोप्लानर करा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप एक पॉइंट को बेस मानो, फिर ए बी निकालो, ए सी निकालो, ए डी निकालो और उसके बाद ही आप तीनों को कोप्लानर कराओ। एकमात्र वही रास्ता नहीं है। अनदर नाइस नोट आई एम गिविंग यू, एक और बढ़िया नोट। अभी तो तुम 4 पॉइंट्स को कोलिनियर करवाए ना, 4 पॉइंट्स को कोप्लानर करवाए, सॉरी 4 पॉइंट्स को कोप्लानर करवाने का तुम्हारे पास देखो बहुत सारा मेथड है। एक एक्स वाई जेड डब्ल्यू ढूंढ लो ताकि सम 0 हो जाए और लीनियर कॉम्बिनेशन 0 हो जाए, लेकिन एक्स वाई जेड डब्ल्यू सब 0 नहीं हो। ये एक हुआ तुम्हारा डेफिनेशन। एक डेफिनेशन की एक को बेस मान के 3 वेक्टर निकाल के उसका एसटीपी 0 कर दो, क्योंकि तीनों के तीनों वेक्टर लाई कर जाएगा प्लेन में और एक कॉमन इनिशियल पॉइंट है तो चारों पॉइंट को। तीसरा मेथड, किसी भी 3 पॉइंट से पास करने वाला प्लेन का इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन निकाल लो एक्स वाई जेड डब्ल्यू के फॉर्म में और चौथा पॉइंट उस पर लाई करा दो। 3 मेथड यू हैव फॉर 4 पॉइंट्स टू बी कोप्लानर। नाउ 3 पॉइंट्स को लीनियर कराने का तुम्हारे पास कितना तरीका है? अभी तक सिर्फ एक। कैसे कराते हो 3 पॉइंट्स को कोलिनियर? नहीं, उसका भी तुम्हारे पास 2 तरीका है, लेकिन बेसिकली वो दोनों एक ही तरीका है। तुम पहले क्या करते हो, दोनों पॉइंट से 3 पॉइंट में 2 पॉइंट से डायरेक्शन रेशियो निकालते हो, फिर बाकी 2 पॉइंट से डायरेक्शन रेशियो निकालते हो और डायरेक्शन रेशियो को प्रोपोर्शनल करा देते हो। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, तुम b माइनस ए वेक्टर निकालते हो और c माइनस ए वेक्टर निकालते हो और एंड बोथ आर कोलिनियर, सो रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स का रेशियो को प्रोपोर्शनल करवाते हो। ये दोनों मेथड तो सेम ही हुआ ना। तीसरा मेथड देखो, एक और है हमारे पास। 3 points whose position vectors are 3 points whose position vectors are a vector, b vector and c vector are collinear if we can find scalars, x, y, z, not all 0, such that x, y और z का सम 0 हो जाए और इन तीनों का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 हो जाए। Are collinear if we can find scalars x, y, z not all 0 such that proof, we have the proof ना, प्रूफ कर लेंगे। प्रूफ बहुत सिंपल, अगर कॉलिनियर है तो सी वेक्टर ए और बी के ज्वाइन को किसी ना किसी रेशियो में तो पक्का बांट रहा होगा, डेफिनेटली। इफ वी हैव सिस्टम लाइक दिस, इधर तुम्हारा ए वेक्टर, इधर तुम्हारा बी वेक्टर और ये पॉइंट तुम्हारा सी वेक्टर जिसका पोजीशन वेक्टर कोलिनियर है, तो कुछ ना कुछ तो m/n का रेशियो में सेक्शन फॉर्मूला के हिसाब से डिवाइड कर ही रहा होगा।
So we can write let C vector divide the join of A vector and B vector in m:n ratio. Then what you can write by section formula? You can write by section formula C vector equal to m times B vector plus n times A vector by, I hope you got my point here. क्रॉस मल्टीप्लाई करो और एक तरफ कर दो. So m times B vector plus n times A vector plus minus m minus n times C vector is a null vector if the 3 points are collinear. Now see, it's a linear combination. It's a linear combination. ये जो n है ये x का रोल प्ले कर रहा है, ये जो m है ये y का रोल प्ले कर रहा है, और ये जो माइनस m माइनस दिस इज z. दैट इज x टाइम्स a वेक्टर प्लस y टाइम्स b वेक्टर प्लस z टाइम्स c वेक्टर शुड बी ए नल वेक्टर वेयर the three coefficient, the three scalars should add up to 0. So this is necessary and sufficient condition for the three vectors a b c to be collinear. मतलब अब देखो तुम कॉलिनियर और कोप्लेनरिटी में कभी फंसना नहीं, बहुत सारा मेथड बता दिए तुमको. So this is all about linear combination of vectors. So we can start solving problem now. First problem, the questions are always easy. I am giving you the question with the direction. You have to solve this problem by two methods. I am telling you by two methods. कोई एक मेथड से करके नहीं छोड़ोगे. जब तक दोनों मेथड से नहीं आएगा तब तक मैसेज नहीं करोगे हमको. दोनों मेथड से आ जाए तो बोल देना सर डन बाय टू मेथड्स. You have to do the method by linear combination also and using STP also. Prove that the points. No. Find the value of lambda. Find the value of lambda. Find the value of, एक्चुअली यहाँ किताब में प्रूफ करना था पर हम तुमको एक जगह नंबर छुपा लेंगे और वही बोलेंगे निकाले. Find the value of lambda so that the points whose position vectors are find the value of lambda so that the points whose position vectors are 2a plus 3b minus c, 2a plus 3b minus c, comma a minus 2b plus 3c, a minus 2b plus 3c, 3a plus 4b minus 2c, 3a plus 4b minus 2c, and a minus 6b plus lambda c are coplanar where a b c are non-coplanar vectors, where a b c are non-coplanar vectors. Please do it. अगर ए बी सी तीनों नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं लेकिन ये चारों पॉइंट जिसके पोजीशन वेक्टर आपको ए बी और सी के टर्म्स में लिखे हुए हैं वो कोप्लेनर है तो लैम्डा का वैल्यू क्या होना चाहिए. और ऐसे भी जान सकते हो तुम तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन में तुम कोई भी वेक्टर लिख सकते हो. तो ए बी सी नॉन कोप्लेनर है ना तो उसका लीनियर कॉम्बिनेशन ही चारों लिखा हुआ है. तो चार अलग अलग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर तो तुम तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर का कॉम्बिनेशन लिख ही सकते हो. तो कोई नया बात नहीं लिख दिया है, बस खाली चारों अगर एक ही प्लेन पर लाई करता है तो लैम्डा क्या होना चाहिए. डू बाय टू मेथड्स एंड टेक्स्ट मी. ओके लेट्स डिस्कस. अगर एक मेथड से भी आ गया तो भी ठीक है. जेई मेंस के दिन आंसर आने से मतलब है, बट मेथड का रेस्ट्रिक्शन लगाना पड़ता है भाई ताकि बच्चा हर मेथड सीखे. सो दिस इज मेथड 1. सी वी हैव टोटल 4 पॉइंट्स. पहला पॉइंट
ए मान लेते हैं, दूसरा पॉइंट बी मान लेते हैं, तीसरा पॉइंट सी मान लेते हैं, चौथा पॉइंट डी मान लेते हैं। लेट पॉइंट ए है जिसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है 2 टाइम्स ए प्लस 3 टाइम्स बी माइनस सी। बी वेक्टर है जिसका पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर माइनस 2 टाइम्स बी वेक्टर प्लस 3 टाइम्स सी वेक्टर। सी पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर है 3 टाइम्स ए वेक्टर प्लस 4 टाइम्स बी वेक्टर माइनस 2 टाइम्स सी वेक्टर। चौथा पॉइंट डी है जिसका पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर का मतलब समझ रहे हो, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ऐसे। मेरा कहने का मतलब ये है ए वेक्टर माइनस 6 टाइम्स बी वेक्टर plus lambda times c vector. Now since all the 4 points are coplanar, since all 4 points are coplanar, that means o, अगर हम a को, डाउट्स अभी नहीं, अगर हम a को रेफरेंस मान लें तो implies ab वेक्टर, ac वेक्टर, ad वेक्टर are coplanar, are coplanar if a, b, c, d lie in a plane. So now AB वेक्टर होगा क्या? AB वेक्टर मतलब कि तुम्हारा हो जाएगा ये OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर, बार बार नहीं लिखेंगे, सीधे लिख दे रहे हैं, माइनस A वेक्टर माइनस 5B वेक्टर प्लस 4C वेक्टर। जहां गलत हो वैसा ही हैंड रेस कर देना, बता रहे हैं, बाद में करेक्शन करने में गुस्सा आता है। AC वेक्टर C में A घटाएंगे ना, तो A वेक्टर प्लस B वेक्टर माइनस C वेक्टर, और AD वेक्टर D में A घटाएंगे ना, तो A में 2A गया माइनस A वेक्टर माइनस 9B वेक्टर और लैम्डा प्लस 1 C वेक्टर। नाउ these 4 are coplanar, these 4 are coplanar। तो कोप्लेनर का मतलब है, और ए बी सी तीनों नॉन कोप्लेनर है, तो तुम बस वही कोफिशिएंट्स का डिटरमिनेंट 0 कर दो, या तुम वो भी लगा सकते हो कि अगर ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर है then you can say that these 3 vectors are linearly dependent, hence you can find some scalars x, y and z such that linear combination of ab, ac and ad, that is x times ab plus y times ac plus z times ad should be 0 where x, y, z are not all 0 simultaneously। घुमा फिरा के कंडीशन तुम्हारा कोफिशिएंट्स वाला डिटरमिनेंट ही होगा। डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली लिखेंगे तो एक्स वाई जेड वाला कंसेप्ट एक बार कम से कम क्लास में डिस्कस नहीं हो पाएगा। तो एक्स वाई जेड वाला कंसेप्ट डिस्कस कर देते हैं, वहां से क्लियर हो जाएगा कि वो कंसेप्ट से ही डिटरमिनेंट 0 भी आ जाता है, तो अगला बार से एग्जाम में डायरेक्टली डिटरमिनेंट 0 कर दिया करोगे। सो लेट एक्स वाई जेड बी स्केलर्स सच दैट x times ab vector plus y times ac vector plus z times at vector equal to 0 where x, y, z are not all 0 simultaneously, where x, y, z are not all 0। देखो ये एग्जाम्पल है, क्लास में हो रहा है, इसलिए हम लिखेंगे हर स्टेप ताकि तुमको कोई दिक्कत ना हो। लेकिन एग्जाम में तुम टाइम बचाने के लिए सीधा डिटरमिनेंट 0 कर सकते हो, वो अभी आ जाएगा, और यहां से तुमको याद रहेगा कि हमेशा हम लोग को कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट 0 करना है, क्योंकि ए बी सी अगर तीनों नॉन कोप्लेनर है और उनका लीनियर कॉम्बिनेशन कोप्लेनर है, तो रेस्पेक्टिव कोफिशिएंट्स का तुम डिटरमिनेंट 0 कर सकते हो, उसमें किसी तरह का कोई मिस्टेक नहीं होगा, और वो यहीं से आएगा, वो चीज यहां से आ जाएगा। अभी लाके हम दिखा दे रहे हैं, यहीं से, एग्जैक्टली यहीं से आएगा। सो इम्प्लाइज x टाइम्स माइनस ए वेक्टर माइनस 5b वेक्टर प्लस 4c वेक्टर प्लस y टाइम्स ए वेक्टर प्लस b वेक्टर माइनस c वेक्टर
प्लस जेड टाइम्स माइनस ए वेक्टर माइनस 9b वेक्टर प्लस लैम्डा प्लस 1 c वेक्टर. दिस शुड बी इक्वल टू ए नल वेक्टर. नाउ a के साथ क्या क्या आ रहा है? a के साथ यू कैन सी व्हाट यू आर गेटिंग. जस्ट सी, a वेक्टर के साथ तुम्हारा आएगा माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड ए वेक्टर. b के साथ क्या आएगा देखो, माइनस 5x प्लस वाई माइनस 9z बी वेक्टर. c के साथ क्या आएगा? आई हैव टू डू ईच एंड स्टेप्स वेरी केयरफुली ताकि तुम्हारा किसी तरह का कोई गलती एग्जाम में ना हो. माइनस वाई प्लस लैम्डा प्लस 1 टाइम्स जेड इंटू सी वेक्टर. दिस शुड बी ए नल वेक्टर. नाउ ए बी सी आर नॉन कोप्लानर, then they are linearly independent. है हेनरिस? नहीं लिखेंगे हेनरिस. A, B, C are non-coplanar, so they are linearly independent. और उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी देखो 0 आ रहा है. इसका मतलब है कि तीनों स्केलर्स 0 होंगे और कोई रास्ता नहीं बचा. So minus x plus y minus z equal to 0, first equation. Minus 5x plus y minus 9z equal to 0, second equation. 4x minus y plus lambda plus 1z equal to 0, third equation. X, y, z are not all 0. Are not all 0. That means the system of equations should have a non-trivial solution. Trivial solution का मतलब 0, 0, 0. So the system should have non-trivial solution. That means the system will have an infinite number of solutions. Implies coefficient matrix का determinant 0 हो जाना चाहिए. See, all things are really connected. और बहुत अच्छे तरीके से कंसेप्ट को बना के रखोगे ना तो मजा आएगा. मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, वेक्टर सब मिला के पढ़ने पर. एक्स वाई जेड आर नॉट ऑल 0 साइमल्टेनियसली. दैट मीन्स सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन. तो इससे एक चीज और रिवाइज हो गया. ये मेंस का फेवरेट टॉपिक है. नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हमेशा पूछता है जिसमें राइट साइड में 0, 0, 0 देगा. तो एक तो ट्रिवियल सॉल्यूशन होता ही है 0, 0, 0. उसके अलावा भी नॉन ट्रिवियल एग्जिस्ट करना है. तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन में 3 ही पॉसिबिलिटी है, या तो यूनिक सॉल्यूशन, या तो नन सॉल्यूशन, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन. यूनिक तो 0, 0, 0 दिख ही रहा है, तो नो सॉल्यूशन का बातें खत्म. साथ में बोल दिया है कि नॉन ट्रिवियल भी एग्जिस्ट करना चाहिए. मतलब 0, 0, 0 के अलावा भी कुछ और आएगा, मतलब दूसरा सॉल्यूशन पक्का तय है, तो फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन ही होगा. सो डिटरमिनेंट शुड बी 0. यहां से तुम कैलकुलेट करोगे, यू विल गेट लैम्डा इक्वल टू 6. प्लीज कैलकुलेट एंड कंफर्म इन द जूम चैट. इज इट ओके? और वी कैन से इट बाय लाइक इजीली. ये तो इजीली हो जाएगा. -1 और 1 को हम 0 बना देंगे बीच वाले 1 के हेल्प से. -1 जो बाद में कॉलम 1 और कॉलम 3 को 0 बना लेते हैं. हम कॉलम 1 को लिख देंगे कॉलम 1 प्लस कॉलम 2, और कॉलम 3 को भी वही लिखेंगे. 0, -4, 3, 1, 1, -1. कॉलम 3 को कॉलम 3 प्लस कॉलम 2, 0, -8 लैम्डा. दिस शुड बी इक्वल टू 0. implies, oh my god, lambda -8, lambda 8 आ गया. I have done some calculation mistake for sure. I have done some calculation mistake for sure. Please tell me where. No, there is no calculation mistake. हम जो फर्स्ट रो है उसके बाद खोल रहे थे और 0 के साथ ही मल्टीप्लाई कर दे रहे थे हम, लेकिन 0 के साथ करने की जरूरत नहीं है. सो इट विल बी लाइक दिस -1 इंटू -4 लैम्डा प्लस 24 इक्वल टू 0. सो लैम्डा इक्वल टू 6. लैम्डा इक्वल टू 6. फ्रॉम हेयर वी आर गेटिंग लैम्डा इक्वल टू 6, जिसके लिए तुमको एग्जाम में इतना करने का जरूरत नहीं है रे भाई. क्यों? जब करोगे तो ऐसे ही आएगा ना. ए बी सी तीनों नन कोप्लानर था ना, तो याद रखो जब भी 3 नन कोप्लानर वेक्टर्स
का लीनियर कॉम्बिनेशन में भी अगर 3 वेक्टर लिखा हुआ है जिसको कोप्लेनर करना है तो तुमको उसको इतना लंबा केस लेने का जरूरत नहीं है. यू कैन जस्ट डू द डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स इक्वेट टू 0. सी हियर, फ्रॉम हियर ओनली यू विल गेट द कंसेप्ट. ये जो ए बी ए सी और ए डी हम लोग बनाए थे, इसमें जो स्मॉल ए था, स्मॉल बी था, स्मॉल सी था, सब नॉन कोप्लेनर था. स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, नॉन कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर. However, the 3 vectors are linear combination of these non-coplanar and these are coplanar. तो यही तो डिटर्मिनेंट लिखे हैं अभी. -1, -5, 4, 1, 1, -1, -1, -9 लैम्डा प्लस 1. बस अंतर ये हुआ है कि इसका ट्रांसपोज हो गया है. ट्रांसपोज, प्लीज हैंड रेज, समझ रहे हो? ट्रांसपोज हो गया है. -154 हॉरिजेंटल आने के बदले वर्टिकल में आ गया है. देखो -154, आई विल शो यू. -154 तुम्हारा वर्टिकल आ गया है. सी माई सॉल्यूशन. -1, -5 और 4 हमारा वर्टिकल में आ गया है. एंड वन मोर थिंग, ऊपर में तो +5 था शायद, नहीं -5 था. -1, -5, 4 तो आ गया -1, -5, 4. तो ये सॉल्यूशन भी तुम्हारा क्लियर है यूजिंग लीनियर कॉम्बिनेशन. दिस इज माय फर्स्ट मेथड. सेकंड मेथड, ये पहला मेथड है. पहला मेथड समझ गए तुम. पहला मेथड में क्या करते हैं, एक को रेफरेंस मान के 3 वेक्टर लिख लेते हैं और आई कैप, जे कैप, के कैप के टर्म्स में अगर नहीं भी आ रहा है तीनों वेक्टर, ए बी सी के टर्म्स में भी आ रहा है और ए बी सी नॉन कोप्लेनर है, तो तुम आई कैप, जे कैप, के कैप में जैसे एसटीपी 0 करते हो वैसे ही ए बी और सी के टर्म्स में भी एसटीपी ही 0 कर दो. कभी गलत नहीं होगा क्योंकि वो तीनों नॉन कोप्लेनर है. और अगर मन में डाउट हो तो टेक द स्केलर्स एक्स वाई जेड. ओके, लीनियर कॉम्बिनेशन 0, ए बी सी नॉन कोप्लेनर, लीनियरली इंडिपेंडेंट, 3 इक्वेशन जिसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होना चाहिए. बस अंतर ये होगा कि तब तुम अगर वहीं ए बी सी का कोफिशिएंट और ए बी सी का कोफिशिएंट और फिर ए बी सी का कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट 0 कराओगे, तब जो डिटर्मिनेंट आएगा और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन वाला सिस्टम ऑफ इक्वेशन का जो डिटर्मिनेंट आएगा, दोनों एक दूसरे का ट्रांसपोज रहेगा. प्लीज रेज हैंड इफ इट इज ओके. दोनों एक दूसरे का ट्रांसपोज रहेगा और ट्रांसपोज कर देने से डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है. इसलिए तुम डायरेक्टली वहीं से कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट 0 कर दो, या तुम सिस्टम ऑफ इक्वेशन बना करके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का रिक्वायरमेंट लगा करके डिटर्मिनेंट 0 कर दो. इज मेकिंग नो डिफरेंस एट ऑल. कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है दोनों आंसर में. रहा बात सेकेंड मेथड का, सेकेंड मेथड इज ऑल्सो इजी वन. उसमें भी घुमा फिरा कर यही डिटर्मिनेंट आएगा, लेकिन उसमें करने का तरीका अलग है, वो हम यहाँ दिखा दे रहे हैं. उसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पर मूव कर जाएंगे. मेथड 2, मेथड 2 डायरेक्ट लिखेंगे, सीधा सीधी बात है. लेट एक्स वाई जेड डब्ल्यू be 4 scalars such that x plus y plus z plus w equal to 0 हो जाना चाहिए. and x times OA vector plus y times OB vector plus z times OC vector plus W times OD vector, ये नल वेक्टर हो जाना चाहिए. Where OA, OB, OC, OD are the 4 points position vectors. That is x times, पहला वाला क्या है, पहला वाला है तुम्हारा 2a plus 3b minus c, 2a plus 3b minus c plus y times दूसरा क्या है, a minus 2b plus 3c, a minus 2b plus 3c plus z times तीसरा वाला क्या है, 3a plus 4b minus 2c, 3a plus 4b minus 2c plus w times क्या है, a minus 6b plus lambda c, a minus 6b plus lambda c. This should be equal to 0.
when you compare the coefficients of three non-coplanar vectors a, b, c, you will get 2x plus y plus 3z plus w equal to 0. एंड b का जब करोगे 3x माइनस 2y प्लस 4z माइनस 6w इक्वल टू 0. एंड जब तुम c का करोगे माइनस x प्लस 3y minus 2z plus lambda w equal to 0. So you have 4 equations and 4 variables. Please check it. The first equation here and the set of 3 equations here, where you should have non-trivial solution. X, y, z, w are not all 0. Are not all 0 implies non-trivial solution exists. Non-trivial solution exist for 4 variables 4 equation. मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस है. सो डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स शुड बी 0, चाहे वो 3 वेरिएबल का सिस्टम हो या 4 वेरिएबल का सिस्टम हो या 10 वेरिएबल का सिस्टम हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं होता है. अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है तो 1 1 1 1 2 1 3 1 3 minus 2 4 minus 6 minus 1 3 minus 2 and lambda. This determinant should be 0. Now this is really horrifying. 4/4 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना तो सजेशन में हम नहीं देते हैं. तो मेरे हिसाब से 4 पॉइंट्स को अगर कोप्लेनर कराना होता है तो हम तो पिछला वाला मेथड ही लगाते हैं, क्योंकि 4/4 का डिटर्मिनेंट 0 कराने का रिस्क कौन लेगा एग्जाम में. नोट्स बना रहे हो? ओके, नो प्रॉब्लम. इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम कॉलम 1 को कुछ नहीं करेंगे, कॉलम 2 में कॉलम 1 घटाएंगे, कॉलम 3 में कॉलम 1 घटाएंगे, कॉलम 4 में कॉलम 1 घटाएंगे. 0 -1 -5 सी वही 3 आ गया, -1 -5 4. अब तो एंट्रेस करोगे ना, वही आ गया -1 -5 4. फिर से 0 1 1 -1, yes again 1 1 -1, we got it. 1 1 -1. उसके बाद फिर 0 -1 -9 lambda plus 1, yes we got it. lambda plus 1 तब भी आया था. this should be 0. now we will open about first row. फर्स्ट रो के अबाउट खोलोगे तो 1 है, तो सीधा सीधी -1 1 -1 -5 1 -9 4 -1 lambda plus 1. जो डिटर्मिनेंट पहले आया एकदम वही आ गया. सो अगेन यू विल गेट lambda equal to 6. परफेक्ट, फाइन. एंड द थर्ड वन इज पल्लवी सॉल्यूशन. पल्लवी ये x + y + z + w का हम जहां से डेरिवेशन करते हैं, पल्लवी वहीं से क्वेश्चन बना दी. पल्लवी क्या की, पल्लवी बोली कि चारों पॉइंट्स अगर हमारे एक ही प्लेन पर लाई कर रहे हैं तो फिर वो वही की जो हम डेरिवेशन में किए थे. मतलब पल्लवी ले ली r वेक्टर माइनस a वेक्टर, r के जगह वो चौथा पॉइंट ली है, एक बेस a को ले ली है. पल्लवी सही बोल रहे हैं ना, हैंड रेस करना. एक को बेस ले ली है, रेफरेंस ले ली है, फिर वो की है d माइनस a को लैम्डा टाइम्स b माइनस a प्लस म्यू टाइम्स c माइनस a कर दी है, और उसके बाद रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स को इक्वेट कर दी है. तो पल्लवी का लैम्डा भी आ गया, पल्लवी का म्यू भी आ गया. लैम्डा म्यू कौन सा लैम्डा म्यू का बात कर रहे हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन वाला लैम्डा म्यू. वहां m और n लेंगे क्योंकि लैम्डा ऑलरेडी क्वेश्चन में है, तो वहां से भी आंसर आएगा, एग्जैक्टली सेम आंसर आएगा. सो यू कैन डू बाय एनी मेथड्स, वी विल डू दैट आल्सो. और उसके बाद आई विल एंड द क्लास, क्योंकि एक क्वेश्चन जो किए वो काफी है तुमको हर कुछ समझाने के लिए. एंड आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस ऑन व्हाट्सएप. आज तुमको भेजेंगे, जो तुम उसको बना लोगे, आज ही बना लोगे, उसको डिले नहीं करोगे. सिंपल क्वेश्चंस होंगे, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा. नाउ सी द मेथड 3 वाज
मेथड 3 क्या था? मेथड 3 था ओ ए वेक्टर क्या दिया हुआ था, 2a प्लस 3b माइनस सी, 2a प्लस 3b माइनस सी। ऐसे भी तुम एग्जाम में करोगे तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ तुम्हारा आंसर आएगा। ओ बी वेक्टर क्या है? a माइनस 2b प्लस 3c, a माइनस 2b प्लस 3c। तीसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है? तीसरा पॉइंट है 3a प्लस 4b माइनस 2c, 3a प्लस 4b माइनस 2c। एक ही क्वेश्चन को पकड़ के ना हर तरीका का मेथड सिखा दे रहे हैं तुमको, नया नया आंसर निकालने का भी झंझट नहीं है। a वेक्टर माइनस 6b वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स c वेक्टर। So now what Pallavi has done, we can write a को वो बेस ले ली है, a को पल्लवी बेस बना दी है, और पल्लवी लिखी है OD वेक्टर माइनस OA वेक्टर, ये प्लेन पर होगा। शुड बी, लैम्डा मत यूज करना, ऑलरेडी क्वेश्चन में यूज किया हुआ है। OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर प्लस n टाइम्स OC वेक्टर माइनस OA वेक्टर। पल्लवी, इज दिस द मेथड? प्लीज रेज हैंड। यही था मेथड। इसी मेथड से, यस पल्लवी रेज हैंड, इसी मेथड से हम वो कंडीशन प्रूफ किए थे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू वाला। सो OD माइनस OA का मतलब हो गया माइनस ए वेक्टर माइनस 9b वेक्टर प्लस लैम्डा प्लस 1 टाइम्स c वेक्टर। दिस शुड बी m टाइम्स OB माइनस OA माइनस a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर। यू सी, इट्स सो ब्यूटीफुल कंसेप्ट। लीनियर कॉम्बिनेशन करने में कितना मजा आता है लोग को, इस पे क्वेश्चन भी आता है मेंस में। सबसे बड़ा बात तो यही है, क्वेश्चन भी आता ही है इससे। सो नाउ सी, यू गॉट द इक्वेशंस। ए को कंपेयर किए इधर से तो तुम्हारा आ रहा है माइनस m और इधर से प्लस n, दिस इज इक्वल टू माइनस 1, फर्स्ट इक्वेशन। बी को किए इजी मेथड, हम तो प्रीफर करते हैं ये मेथड बेस्ट है, माइनस 5m प्लस n इक्वल टू माइनस। ये मेथड में कहीं किसी तरह का ह्यूज कैलकुलेशन का चांस नहीं उठता। डिटर्मिनेंट जीरो कराओ या फिर ये वाला मेथड लगाओ, बेस्ट है। ये वही इक्वेशन है, बार बार बोल रहे हैं, इट इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंसेप्ट। ये जो हम लिख रहे हैं ना, दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन कंसेप्ट है, ये जो हम लिख दिए थे। दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन कंसेप्ट जो हम लिखे थे, r माइनस ए इक्वल टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ b माइनस ए एंड c माइनस ए, और r के जगह चौथा कोई भी पॉइंट रख सकते हो जो प्लेन पर लाई कर रहा हो। और c का कंपोनेंट जब हम इक्वेट किए तो क्या आया मेरा, 4m माइनस n इक्वल टू लैम्डा प्लस 1। So from first two equations, can I get m and n? I subtract from 1, I subtract 2. So 4m equal to 8, m equal to 2, m 2 रख देंगे, and n equal to minus 1. m equal to 2 and n equal to minus 1. Now you put this value in third equation. m equal to 2, n equal to minus 1. You put in the last equation, you will get m equal to 8 plus 1 equal to lambda plus 1. So again I am getting, okay, now this n will be, m अगर हम 2 रखेंगे ना तो n तुम्हारा 1 हो जाएगा। That's why we are getting different answer। ऐसा नहीं है कि मेथड अलग से तुम्हारा आंसर लगाएगा। तो यहाँ पर 1 होगा और तुम्हारा जो नीचे में लिखे हैं हम, वो यहाँ पर माइनस 1 होगा। This will be minus 1 and see you are getting lambda equal to 6. So lambda equal to 6, तुमको तो m भी मिल गया, n भी मिल गया और lambda भी इस तरीके से मिल गया। So all are done. So this will be the last problem of today's class and you can expect similar problems directly। ऐसा क्वेश्चन जेईई मेंस पूछ देता है, लेकिन we have to prepare ourselves for tougher level, इसलिए ये क्वेश्चन कर लेते हैं, पर इससे ऊपर लेवल के क्वेश्चंस भी करने हैं हम लोग को। कंसीडर द वेक्टर्स, consider the vectors
एक काम करते हैं, 2 क्वेश्चन हम लिख रहे हैं साथ में, दोनों सॉल्व करो तब क्लास एंड होगा, और दोनों का आंसर एक साथ दोगे। कंसीडर द वेक्टर्स i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, कॉमा 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, एंड 3i कैप प्लस 2j कैप, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस lambda k cap. Find the value of lambda. Find lambda if these vectors. Find the value of lambda if these vectors are linearly dependent. If these vectors are linearly dependent. इससे पहले कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, तुम इसका आंसर ही ले आओ ताकि तुम्हारे ऊपर लोड ना रहे, और आंसर तुम चाहो तो चैट में भेज भी सकते हो. And the last question for today's session will be, see if concepts are cool, then कोई भी question हो सवाल बनना ही है. The position vector of the points, the position vectors of the points, the position vectors of the points A, B, C and D, A, B, C and D are 3 minus 2 minus k, comma 2i cap plus 3j cap minus 4k cap, minus I cap plus j cap plus 2k cap, and 4i cap plus 5j cap plus lambda k cap, 4i cap plus 5j cap plus lambda k cap. Find lambda if 4 points are coplanar. Find lambda if A, B, C, D are all coplanar. Please, are all coplanar. I am not going to solve this. I just want answers from you. From my side, the recording is over for today's class. इसका आंसर्स तुम दोगे और हम उसके बाद मीटिंग एंड करेंगे.